بہت بڑے سنجیدے ہیں، ہمیں پتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے الحاد سے توبہ کر دی؟ آپ تو ملحد تھے، آپ تو ایتھیسٹ ہیں، آپ تو مرزا صاحب پر لعنت ڈال چکے ہیں، آپ تو مرزا مسرور صاحب پہ لعنت ڈال چکے ہیں، آپ تو جماعت احمدیہ کو جھوٹا فراڈ اسکیم کہہ چکے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے توبہ کر لی پیارے بھائی؟ ایک تو یہ چیز نمبر 1۔ نمبر 2 چیز میں نے آپ سے یہ پوچھنی تھی سنجیدے سلیم صاحب، تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ بڑی سنجیدہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ جیسے سنجیدے آدمی جو ہے اس کو پھر مخاطب کر کے بات کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کو ہمارے بارے میں ادھر ادھر باتیں کر کے ادھر ادھر شور شرابہ کرنے کی بڑی عادت پڑ گئی ہے، مگر ہمارا سامنا کرنا آپ کی ماؤں کی کوکیں بانج ہو چکی ہوئی ہیں۔ آپ کی احمدی ماؤں کے پیٹوں میں وہ بطن نہیں ہے، اور احمدی مردوں کے خصیوں میں وہ تخم نہیں ہے جس کے ملاپ کے ساتھ کوئی احمدی مرد پیدا ہو جائے اور اللہ کے حکم سے ہمارا سامنا کر جائے۔ آپ میں نہیں ہے وہ۔ یہی ہوا، پبلک نے دیکھ لیا۔ اللہ کے حکم سے غلط میں کی کرنی سی، ہماری موجودگی ہی تمہارے لیے ایک سوگ کا سما بن جاتا ہے۔ ہماری موجودگی، بات تو ہم نے بعد میں کرنی ہے، اور ہمارے سامنے آ کے تڑیاں لگاتے ہیں، فلاں کا نام جانتے ہو، فلاں کا جانتے ہو کاکا، ہم نام نوم نہیں، ہم نام آپ کا سطح کر دیتے ہیں میدان کے اندر۔ سن لیا؟ اچھا، ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بھگوڑے کل بھی بھاگ گئے، آج بھی بھاگ گئے۔ آپ اندازہ کرو، سفسٹیکیٹڈ ایسے بنتے ہیں جیسے ہم بات، اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ اسامہ کی ریسرچ ہے تو فلانے کی ریسرچ ہے تو اس لیے اس کو آنا چاہیے، فلانے کو آنا چاہیے۔ میر سلیم تو کب اپنی کھڑ سے باہر نکلے گا؟ اوے چلغوزے، وہ چھچھورے، وہ چھپری، وہ لچر اور ٹچے ہیں، تو کب اپنی کھڑ سے باہر نکلے گا؟ تو بڑی اپلوڈنگ کرتا ہے نا، تو کب اپنی کھڑ سے باہر نکلے گا؟ نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے، وہ جو تیرا جری یلاش ہے اس کے تو پد نکل گئے تھے، اس کا پیمپر پھٹ گیا تھا، کہتا ہے اسٹوڈنٹ میری ٹٹی اٹھانے کے لیے میرے ساتھ آ جاؤ۔ یعنی اسٹوڈنٹ کو اس نے ایز اے چوڑا اپنے ساتھ رکھا تھا کہ اگر اس کا پیچس لیک ہو جائے تو اسٹوڈنٹ اپنے منہ میں ڈال کے اس کو اٹھا کے ساتھ لے کے جائے۔ یہ حالت ہے۔ اس وقت نہیں تجھے یاد آیا تھا؟ کہتا ہے جی ہم دونوں سٹیج پہ چڑھیں گے، دونوں چڑھ کے بات کریں گے، تم دونوں ہمارے کانگرو پر چڑھ بھی جاؤ تب بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم بات کر پاؤ۔ یہ ہے حقیقت تمہاری۔ ہم عامر حق سے بات نہیں کریں گے، عامر حق سے تمہارے بڑے بھی بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس سے آگے موت شروع ہوتی ہے، موت کا تانڈو ہے، اکھا پبلک جانتی ہے موت کا تانڈو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اکھا پبلک کو پتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے ہماری انٹری ہوتی ہے تمہارے بڑوں کی پتلون گیلی ہو جاتی ہے، بڑوں کی، ان کو پتا ہے، بات کرتے ہیں۔ یہ شوکانیاں ادھر ادھر مسلمانوں کی براڈ کے ساتھ انگیج ہو گئے، یہاں پر ٹیٹو پارٹیاں کر رہے تھے، تمہارے رنگ میں بھنگ ہم ڈالیں گے، فراڈی ہے، ہم بات کر۔ اچھا دوسرا یہ چیز ہے، تو کب سے درس دینا شروع ہو گیا؟ تو کب سے لیکچر دینا شروع ہو گیا؟ فلاں گالی باج ہے، اچ سے بات نہیں کروں گا، اوے چھمیاں، اے چھمیاں، اے میر سلیم چھمیاں، تیری گالیاں ہم جانتے ہیں بٹوا، اے چھمیاں، تیری ساری گالیاں گلوچ ہم تیری زبان جانتے ہیں۔ جس دن تیرے میں تپڑ ہوا مرزا صاحب کی صداقت پہ بات کرنے کا دم ہے تیرے میں؟ او ملحد سلیم ہے؟ نہیں ہے تو فلاں ہماری، اچھا ہم سے بات نہیں کرنی مگر ہماری ڈیپیاں لگا کے ہم پہ تبصرے کرنے ہیں، او منافقو، او کھسیو، او مخنسو، او ہجڑو، او خسرو، او کنرو، او 2 نمبرو۔ تم لوگوں نے بات بھی ہم پر، اچھا بچارے نے اسکرین شاٹ لے کے ایڈیٹنگ کر کے پوسٹر اتر تھلے کر کے لایا ہے مگر گل نہیں کر رہی۔ اے عامر حق کا نشہ ہے ہی ایسا کہ جماعت احمدیہ کے مرد اور خواتین اس پر فدا ہیں۔ اے ہم سے دور جاؤ گے کیسے؟ دل سے ہمیں بلاؤ گے کیسے؟ ہم وہ خوشبو ہیں جو تمہاری سانسوں میں بستے ہیں، بھلا اپنی سانسوں کو روک پاؤ گے کیسے؟ ہم تمہارا پیچھا پل سرات تک کریں گے کاکا۔ ان کو لگا ہے کہ میں واقعتاً ان سے بات کر کے، نہیں، وہ دن
तुम लोगों ने अपनी माओ की कोकों से बाहर झांक कर देखा ही नहीं। उस चढ़ते सूरज पे तुम जुर्रियतुल बगाया अपनी मां के अंदामे नहानी से किरमे खाकी की तरह बाहर फिसले ही नहीं। जिस दिन तुम हमसे बात कर जाओ वो तो दिन बहुत और हैं। असल मसला पता क्या है? असल मसला यह है कि पब्लिक को यह डेमो दिखाना था कि आमिर हक को देखकर तुम्हारे बड़े बड़े कद काठ, हम बड़े हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इनकी मैया कैसे फौत होती है, दफन होती है चौक के अंदर, इनको पता चल जाता है। तो ये डेमो हमने दे दिया। बात तो देखिए, बात तो फिर कोई नसीब वाला करेगा ना हमसे, बात तो फिर कोई नसीब वाला करेगा हमसे। हर एक की किस्मत में ठुकाई नहीं होती। आहा, ये दुड़की जो तुम्हें लग रही है, वल्लाह ऐसी कोई जुदाई नहीं होती। और तुम्हें बता दूं, जमाते अहमदिया के मुरब्बियों के साथ जो मैं करता हूं, इस किस्म की कोई और आई नहीं होती, आई नहीं होती। पर वजन सेट कर लो, ज्यादा नहीं मैं करूंगा। आमिर भाई, सलाम अलैकुम। आमिर भाई, ये कह सकते हैं कि इनकी माओ की छातियों खुश्क हो चुकी हैं आमिर हक के सामने? नहीं वो देखें, नहीं वो छातियां जो इनकी खुश्क नहीं, वो बतन, उस बतन से ऐसा कोई बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा जो आमिर हक के सामने खड़ा। देखिए, छातियों में दूध जो है वो तब आएगा जब इनकी माओ के पेटों से कोई मर्द पैदा होगा। जब मर्द पैदा ही नहीं हो रहा तो छातियों में दूध कहां से आए? वो तो फिर मैं जानूं, वो जाने। ठीक है ना? समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अब समझने की बात ये थी, अवैस भाई ने स्टेज पे लिया, मैंने कोई बात की नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने माइक म्यूट रखा, मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे भी मौका दीजिएगा। अपने दोनों का देते, मैं माइक म्यूट करके बैठ गया। आप अंदाजा करें कि वो फोर्थ इडियट जो है, चौथा इडियट, उसने बड़ी कोशिश की मुझे प्रवोक करने की। मैं रिलैक्स, मैंने तो कोई बात नहीं की। उसकी वजह यह है कि जब हम मैदान में उतरते हैं ना, तो अल्लाह के हुक्म से जिगरा लेके उतरते हैं। तुम्हारी तरह मुखन्नसों की तरह छुछोरो छुई मुई पिद्दी दिल पतली चमड़ियां, और अगर तुम्हारे अंदर इस तबलीग में जमाते अहमदिया के फनियरों सट्टे खाने की सकत नहीं है, तो फिर अल्लाह के हुक्म से हमारे सामने मैदान में ना निकला करो। तुम्हारे अंदर इतने गट्स नहीं हैं, तुम्हारे नर्व्स इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि तुम किसी तनकीद को बर्दाश्त कर सको। जिस बंदे के अंदर इतना तप्पड़ नहीं वो क्रिटिसिज्म ले सके, उसको डूब के मर जाए, वो साइड पे होकर निकल जाए, उसका खाला जी का हलवा नहीं है ये है जिगरा। तूने हम पर तनकीद की, मैं सुकून से बैठा हूं। हमारी डीपियां लगा के चर कर रहे हैं, हम सुकून से बैठे। मैंने तो नहीं बात व्यूवरशिप ले रहे हैं सर, व्यूवरशिप ले रहे हैं आमिर भाई, आप लोगों के नाम से व्यूवरशिप मिलती है। तो पब्लिक ने देख लिया, अच्छा किया इन्होंने इस तरह भागे हैं। वल्ला मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मुझे बोलने का मौका देते, हो सकता है इनको बीच में कोई बात मिल, मैं सही बता रहा हूं, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार गए हैं इनको। इन उल्लू के पट्ठों को यह भी नहीं पता कि टेक्निक क्या होती है। ये मुझसे सीखें, इनको मैं सिखाऊं कि अगर तुम लोगों ने इस तरह की कोई हरकत करनी होती है तो वो भी सियाणी हत्ती करनी चाहिए ना। मिसाल के तौर पर आप अंदाजा करें, जमाते अहमदिया के लोग सोच रहे होंगे, यार आमिर ने तो गाली नहीं की थी, नस गए ने, लिटरली नस गए ने जुतियां छड़ के, यानी उसको बोला ही नहीं। अब सुने जरा, अगर ये मुझे बोलने का मौका देते, हो सकता है मेरी बात में कोई ऐसी बात निकलती जिस वजह से ये कहते, हो सकता था ना, हो सकता है कोई लूप होल आप दे देते, कोई लूप होल आप हो सकता है मैं गुफ्तगू में कोई बात करता, इनको मौका मिलता कि यार देखो आमिर ने चूंकि ये बात की है, इस वजह से इससे बात नहीं करते। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने इनके मुंह पर यह कालक रखी हुई थी। और मीर सलीम तो बड़ा कहना ना, हाँ रब डांगा नहीं मारदा मत मारदा, ते तेरी अज मत मारी गई सी, तू जिथों नसे है ते तेनू डांगा नहीं, तेरी मत पई है, तेनू डांगा मैं मारियां ने पुत्र, छोरिया वड्डे गोशत दिया। अब मकसद क्या है प्यारे भाई? मकसद ये है, इनका बीच बाजार में गुफ्तगू शुरू होने से पहले भाग जाना, ये अल्लाह के हुक्म से इस चीज को स्टंप लगाता है कि डरपोक लोग हैं। लोगों ने कहना यार वो तुसी यानी इन्होंने खुद हवा बना दिया है। इनके अपने अहमदी कह रहे होंगे यार आमिर हक दे विच की है, कौन है वो आमिर हक, यार मुंह चुआ के कट दे, करो गल ओदे नाल, की मसला तुहानू? तो ये भाग जाएगा, आमिर हक खा जाएगा। हाँ, सो जा बेटे सो जा, आमिर हक आ जाएगा।
ते मंजी हिला जाएगा, चूं चूं करा जाएगा, रौला पवा जाएगा, पर्दे खुला जाएगा, हाँ इज्जता लुटा जाएगा, कबाड़ा करा जाएगा। यह है मकसद। तो अवैस भाई, हम बैठे थे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बात करने के लिए। मैंने सोचा कि शायद आज आपने इनको कन्विंस कर लिया है और आज आपकी देखें, आप पर ट्रस्ट है इनको। ये कहता है भाग भाग यार, अगर को यार आप मुझे बताओ वैसे साहब कि इनके पास कोई जस्टिफिकेशन है ये हरकत करने की? मैं बोल रहा हूं, चलो मुझे बताओ वै मैंने को डिसरप्ट किया हो, मैंने माइक अनम्यूट करके छोड़ डाला हो, ठीक है, मैंने मिर्जा साहब के मुतालिक को गलत बात की हो, बताएं मुझे। सोचने की बात है भाई। वही तो मैं असल देखिए, मैंने उनके सामने बात यही रखी थी भाई कि ठीक है, लिखा जी चल अवैस बला बला नलक मुबीन बना। यार ना यार साहब छोटो भाई, ऐसे ना कोई यार। ये देखो, अगर हम ऐसे उनको बुलाएंगे, हम ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल बुलाए, देखो यार, देखो मेरी यार आमिर भाई मेरी बात सुनिए यार, मैं आपसे एक बात, ये आपने ये गलत तरीका, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, उधर ट्रक दी बत्ती पीछे मेरी बात का जवाब खा गए हैं, पता है ना, इधर क्योंकि अपनी पकड़ाई हो मैं देता हूँ जवाब, मैं देता हूँ। बात ये है, मैं जवाब देने वाला नहीं ऐसे नहीं, मैंने आपसे जवाब लेना। मुझे ये बताएं नंबर 1, क्या मैंने उनको जाने का कोई, यानी मैंने कोई आपका रूल तोड़ा? नहीं। मैंने माइक अनम्यूट करके छोड़ डाला? नहीं। मैंने गाली गलौज की? नहीं। मैंने को पहल की? नहीं। तो फिर मुझे बताओ ना, पीछे रह क्या गया है यार? मुझे वो ये तो मैं उनसे पूछ, मैं वही तो कहा, मुझे अब देखिए, मैं उनसे यही बात कर रहा था कि भाई अब मुझे कोई म्यार भी तो बता देना कि कैसे, मतलब मैं अब जैसे आप हैं, ठीक है, एक तो मेरे ऊपर पहले वो आपकी कोई मैंने चंद तारीफी अल्फाज कह दिए थे कभी, तो वो उसके ऊपर मेरे ऊपर मेरी मतलब आपकी वजह से तस्वीरें मेरी लग गई, ठीक है, एक तो वो एक अलग मसला है। दूसरी बात ये है भाई कि मैं देखिए, मैंने सीधी बात ये की है कि आपकी बात बिल्कुल म्यार पर है। मैंने उनसे यही कहा था कि मुझे बताएं कि मैं अब उन्हें कोशिश कह सकता हूँ ना, मैं देखिए, मैं उनकी जगह पे मैं तो हूँ नहीं। हालांकि उन्होंने बीच में, मैंने लफ्ज नोट कर लिए, उन्होंने 2-3 वर्ड जो बोले थे वो काफ़ी हार्ड वर्ड बोले थे, बहुत सख्त अल्फाज थे। और मैं आपको ये कहने वाला था कि आप वो जितने अल्फाज उन्होंने बोले हैं, आपकी मेहरबानी आप उतने अल्फाज तक ही उनको रिप्लाई करें, उससे ज़्यादा ना जाइएगा। तो मैं आपको यही कहने वाला, लेकिन वो मौका यहाँ तक नहीं मिला। और यकीनन तमाम मुस्लिम अवैस भाई देखें, ना मैंने पहल करनी थी, ना मैं कभी पहल करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा चेयर को ड्रेस करें, मैं वल्लाह मेरा कोई इरादा नहीं था उनको ड्रेस करने का। उसकी वजह मैं बताता हूं। जब मैं अक्सर कहा करता हूं कि किंग कॉन्ग मच्छर नहीं मारता, वो तो उसके सांस से या इधर उधर वैसे मर जाते हैं। जब मेरी मौजूदगी से ही अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा समा तारी हो जाता है कि जिससे कुफर और जनादिका जो हैं उनके ऊपर लज़र तारी होता है और उन पर खौफ व हरास तारी होता है और उनके अंदर एक बड़ी ही जो है वो हड़बड़ाहट पैदा होती है, तो मुझे प्यारे भाई ज़रूरत ही नहीं है किसी को मुखातिब करने की। अब आप अंदाजा करें ना कि जब मैं स्टेज पे आया था, रिकॉर्डिंग मौजूद है, मीर सलीम का कॉन्फिडेंस शटर हो चुका हुआ था। आप उसका स्टाइल देखें, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा और फिर बार बार शुरू हो गया था ये कहना। आप देखें, रेपिटेशन हुई है। सलीम मीर का दिल नहीं कर रहा था माइक छोड़ने का। आप रिकॉर्डिंग निकाल कर देखें, स्टार्ट में जो बात कर रहा है, फिर 3 बार उसने बात दोहराई है कि किसी तरीके से टाइम टपा दें, आमिर हक नू कॉल आ जाए, आमिर हक नू थले सट दिता जाए, अवैस का कोई मसला बन जाए, मैं ये कह दूं मुझे देर हो गई है। उसने बड़ी कोशिश की है। जब आपने उससे माइक लिया है तो एक बंदा रेपिटेशन का सहारा ले रहा है। मुझे इनको मुखातिब करने की जरूरत ही नहीं है प्यारे भाई। मैंने सिर्फ इतना कहना था आपको मुखातिब करके, ये जो थे मोहतरम, ये बड़ा लेक्चर और दर्स झाड़ रहे थे, तो पूछना मैंने ये था आपसे अवैस भाई कि ये बंदा तो, कुछ लोग तो मुल्हिद हैं, चले नाम नहीं मैं ले रहा किसी का भी, ये तो मुल्हिद हैं, या तो बताएं कि इन्होंने तौबा की और नया बैत फॉर्म साइन किया है और खलीफा मसरूर साहब के हाथ पर ऐसे लोगों ने बैत कर लिए दोबारा, ये तो मुल्हिद हैं। ये कैसे दर्स दे सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं कि फलां ऐसा है फलां ऐसा है? मैं बताता हूँ, मुझे मौका दें। देखें, बात ये है, देखें वो, अब मुझे ये बात आए कि जब कंप्रोमाइज़ करने के लिए दोनों साइड से कोई तैयार नहीं होगा, तो मैं तैयार हूँ। मेरे जैसे अच्छा मेरी बात तो सुने, मुझे बात तो पूरी, देखें तैयार से ये मुराद है कि यार अब उनको भी चाहिए थोड़ा सा अपने आप को पोलाइट वे में लेके आए, गुफ्तगू के यहाँ तक है कि गुफ्तगू हो सके ना। अब हम कहेंगे यार कि सीकर की अपनी रिसर्च नहीं है, हाँ, या फलां हैंडम का है, ठीक है। देखिए मैं ये कहता हूँ भाई, अगर उनकी रिसर्च नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर वो गलत है, कोई बात नहीं भाई, सुनने वालों को पता चलेगा कि भाई उनकी रिसर्च नहीं है।
اور سننے والوں کو پتہ چلے گا یار ایک منٹ ٹھہرے یار کون یار مرزا آپ کو مہربانی یار مرزا صاحب کو تو گالیاں نہ نکالیں یار. میں نے آپ کو 10 مرتبہ کہا بھائی کہ آپ اپنا عقائد ضرور بیان کر سکتے لیکن خدا کا واسطہ ان کو گالیاں نہ نکالیں یار. آپ میرے بھائی ہیں سب. تو یار عامر بھائی یہ تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں نا, ان کو بولے کہ مرزا کو گالیاں تو نہ نکالیں. گالی گلوچ نہیں, حوالہ پیش کریں, گالی گلوچ نہ کریں, حوالہ آپ دیں, مگر وہ بھی کوشش کریں کہ یار ہتھوڑا کوشش کریں اگنور کر دیا کریں کمنٹس کو, نہ لوگ نہ انگیج ہوں کمنٹس میں. پلیز مسلمان دوستوں سے گزارش ہے اپنی انرجی ویسٹ نہ کیا کریں, ریلیکس ہو جائیں, نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے عامر بھائی کہ یہ بات ہے کہ انہوں نے کچھ الفاظ جب انہوں نے باری لی تو انہوں نے کافی سخت الفاظوں کا چناؤ کیا, اور ہارش کا ورڈ میں چونکہ عربک میں انگلش میں ہے تو وہ بڑا عجیب سا مطلب بندہ, تو اس لیے اس کا میں ہارش نہیں یوز کر رہا یہاں پہ. اب یہ ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ عامر بھائی یہ گفتگو ہوگی کیسے, کہ ہم بات کیسے کر پائیں گے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, گفتگو آپ نے مجھے انہوں نے لکھا کہ آپ کے بھائی آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. دیکھو اسے کہتے ہیں تیلی لگانا. تو یہ جو پھپے کٹنی اور میسنی مائیوں والی انہوں نے حرکت کی ہے, یہ وہ ٹرمز ہیں جو ہمارے کلچر میں بولی جاتی ہیں, میں کوئی گالی نہیں دے رہا. تو یہ جو انہوں نے پھپے کٹنی اور میسنی عورتوں والی حرکت کیا کہ آپ کے بھائی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم تو آج بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں, ہم تو آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو ہمیشہ بیٹھے ہیں. اور میں نے تو کل بھی آپ کو کہا تھا, میں اچھا مزے کی بات ہے میں نے اس وقت نیچے لکھا ہے کہ آئی ٹرسٹ اویس, لیٹس اسٹارٹ دا ڈیبیٹ. میں نے تو لکھا ہے کہ میں اپنے بھائی پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, شروع کرو بسم اللہ. یہ فنکاریاں اور یہ چھچور پنتیاں اور یہ ٹچکر بازیاں یہ اب ان عمروں سے نکل آؤ. اگر ویسٹ میں جا کے بھی تم لوگوں نے احمدی مربیوں اس طرح کی چھچور پنتی اور لچر بازی کرنی تھی, یہ ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ سلیم میر نے بھی یہ ورڈ یوز کیا ہے, ٹھیک ہے, لچر پنتی. تو اگر سلیم میر صاحب اور ساتھ جو وہ بچونگڑا تھا اسٹوڈنٹ نام کا, جس کو جوانی ابھی چڑھی نہیں اور بچپن اس کا جا نہیں رہا, اگر تم نے یہی لچر پنتی اور چھچور پنتی کرنی ہے تو پھر اس طرح حرکتیں نہیں کیا کرو, یہ سگا بننے کی کوشش نہ کرو, ٹھیک ہے, کہ جی اویس صاحب پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. سب اویس صاحب پہ ٹرسٹ الحمدللہ ہم کرتے ہیں, آج موجود ہیں, تم بھاگے ہو, اس کا مطلب ہے تم ٹرسٹ نہیں کرتے. سوچنے کی بات تو یہ, میں تو موجود ہوں. اچھا اویس صاحب انہوں نے آپ کو کہا نام لے کر کہو عامر حق کو, یہ گالی بات ہے کہا, ٹھیک ہے نا, یہ کرنے کی کوشش کی. آپ اندازہ کریں ایک رتی برابر بھی ہماری صحت پر ان کی ویسے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ اگر ان کے کہنے سے فرق پڑتا ہوتا تو پھر ہمارے کہنے سے پھر ان پر بھی فرق پڑنا چاہیے, کیونکہ ہم تو مرزا صاحب کو گالی باز کہتے ہیں, یہ تسلیم کرتے ہیں. ہم تو مرزا صاحب کو نام لے کے کہتے ہیں کہ ان سے بڑا گالی بازی کوئی نہیں, انہوں نے اسلام کے خلاف گالی بازی کی. اب اس کا ثبوت دے دیتے ہیں, مگر میں نے نہیں یہ کہا, میں ابھی اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ لوگ گئے ہیں. اگر واللہ یہ لوگ رہتے میرے دل میں ان کی عزت بڑھتی کہ یار کم از کم یہ انٹیگریٹی والے لوگ ہیں, یہ اس لیے لوگ ہیں کہ چلو ان کو بات کرنے کا سلیقہ طریقہ چاہیے, یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ فرق ہے پیارے بھائی, ہمیں کوئی دقت نہیں. دیکھیں آپ نے کہا پہل نہیں کرنی, میری عادت ہی نہیں ہے, میں کبھی بھی پہل نہیں کرتا. مجھے کسی سے پنگا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے پیارے بھائی, آئی ہیو بگر تھنگ ٹو ڈو, ٹھیک ہے نا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں پھٹا کروں, نمبر 1. نمبر 2, اگر میرے پہ کوئی اٹیک کرے گا تو پوری دنیا کا انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے, لا سیٹ ہوا ہے, وہ مجھے اجازت دیتا ہے میں سیلف ڈیفenس کے اندر اپنی بات کر سکتا ہوں. یہ مجھے حق حاصل ہے, سمپل سی بات ہے. اب میں نے, آپ نے کہا چیئر کو, ابھی آپ چلو میں آپ کو کہتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں بات کیسے ہوگی, میں ہر چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں, بتائیں یہ آئیں گے, آتے ہیں یہ بات میں. اچھا مجھے ایک چیز بتا دیں آپ, یہ کیا جو کہتے ہیں نا, جو شرائط رکھتے ہیں. بات سن لیتے ہیں, ایک بات بڑی زبردست, میری بات سنیں, ایک بات جیسے ابھی آپ نے کہا, جیسے آپ کو میں نے کہا کہ آپ کے گالم گلوچ نہیں کرنا. اب آپ نے کہا فحش یا فحاشا, I don't know کیا ورڈ ہوتا ہے, کیا ویسی گالیاں مرزا صاحب کو دی ہیں مطلب اپنی پوری اس اسپیم آف یور جرنی میں؟ آپ نے ایسے کوئی ورڈ جو فحاشا قسم کے ہو مرزا صاحب کے لیے بولے؟ نہیں, میں نے کوئی ورڈ ایسا جو یا مرزا صاحب نے یوز نہ کیا ہو ان کی کتاب کے اندر, یا جو مرزا صاحب کے لٹریچر یا جماعت کے لٹریچر میں موجود نہ ہو, یا جماعت کے لوگوں نے خود گاہے بگاہے مرزا صاحب کے متعلق استعمال نہ کیا ہو, میں نے کوئی ورڈ ایسا نہیں کہا. اب آپ کے سنیے ذرا, اب آپ کے سوال کا جواب آنے لگا, یہ ہو گیا پرنسپل. اب سوال کا جواب ہے, اگر یہ لوگ ان چیزوں کو فاحشہ کہتے ہیں, ان الفاظ کو فحش کہتے ہیں, تو ٹھیک ہے, پھر میں نے بھی استعمال کیا, مگر اس جرم میں پھر وہ بھی شریک ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہیں کہ نہیں مرزا صاحب کا لٹریچر, جماعت کا لٹریچر اور مربی جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ الفاظ فاحش یا فحش الفاظ یا فاحش قسم کی گفتگو وہ نہیں کرتے, تو ٹھیک ہے, پھر میں بھی نہیں کرتا. مثال کے طور پر ابھی انہوں نے جو جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ فلاں فلاں یہ ہماری ڈی پی لگائی ہوئی ہیں. یار اویس بھائی سوچنے کی بات ہے, میں نے اگر کسی بندے کو مخاطب نہیں کرنا ہے میں اس کی ڈی پی کیوں لگاؤں گا؟ میں نے اگر کسی بندے کے ساتھ گفتگو میں انگیج نہیں ہونا, میں اس کو پروموٹ کیوں کر رہا ہوں, اس کی آئی ڈیز کیوں لگا رہا ہوں؟
इस बंदे ने स्क्रीनशॉट लगा, टाइम निकाल, एडिट कर, अपनी आईडी ऊपर लगा, उस पर कुछ लिख, हमारी आईडी इस लाइन में लगा। अगर इसने की है तो दैट मींस इसका मतलब ये है कि ये कोई एक्टिव हमारे लिए कोई बात करना चाह रहा है। तो फिर इंटरेक्ट करो ना, हमें कन्फ्रंट करो, हमसे बात करो, हमें बात भी नहीं करनी। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इसने आपको कहा कि जी फला फला का नाम लेकर कहें। अगर ये हमसे बात करना चाहता है, इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, गालीबाजी के ऊपर। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, जो जुमला मेरा ये दिखाएंगे, मैं उससे ज्यादा घटिया, ज्यादा बेहुदा, ज्यादा गंदा जुमला जमात के लिटरेचर से दिखाऊंगा। जो ये मेरा दिखाया, मैं गारंटी करता हूं, इधर लिख, मेरी रिकॉर्ड कर लें। जो जुमला मेरा दिखाएंगे मैं जमात के लिटरेचर से दिखाऊंगा, उससे घटिया जुमला मैं यार आमिर भाई चलें, मेरी बात एक और चैलेंज, एक और नहीं, चैलेंज असूल तय करें फिर। मेरे 1 मिनट असूल तय करते हैं, रुके जी। एक और चैलेंज दे दूं, फिर उसके बाद उसूल रखें। एक और चैलेंज, फिर उसूल, यानी उसूल दोनों के लिए आ जाएगा ना। चैलेंज एक और, आप अपना बाइट खाएं। अच्छा सुने, देखें, मैं एक और चैलेंज देने लगा हूं। इन्होंने मेरे मुतल्लिक ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। मैं इस पर इनको चैलेंज देने के लिए तैयार हूं। ये मेरे उन जुमलों के ऊपर मुझसे बात करना चाहते हैं, आ जाएं, इनके बहाने नहीं चलेंगे। अब दोनों चैलेंज है मेरे, आज बात करें। मैं साबित करूंगा कि उससे बड़ी गुस्ताखियां मिर्जा साहब ने और इनकी जमात ने की होंगी। जी प्लीज अब करें। अब मेरी बात सुनो। असूल ये है कि आप एक बार अवैस इकबाल की ब्रॉड पर गए थे, ठीक है, उसकी स्ट्रीम पर गए और आपने गुफ्तगू करनी चाहिए। शुरुआत हुई, उसने एक ऐसा जुमला बोला जो कि नाजेबा था। उस नाजेबा जुमले के बदले में आपने बहुत ही मतलब माँ बहन, अगर मैं आई एम सॉरी टू से, आपने माँ बहन कर दी उसकी, सिर्फ इस वजह से, और वो गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ सकी। और वो जो जुमला था वो नाजेबा था, मतलब अच्छा नहीं था वो। अब आप मेरे साथ पहले इस बात पर एग्री करें, जो असूल म्यार आपने वहां पर बनाया वही असूल और म्यार जमात अहमदिया के साथ भी बनाएंगे। और ऐसे नाजेबा अल्फाज अगर आपके साबित होते हैं तो यकीनन उन लोगों को आपसे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तो इस बात पर, इस असूल पे आप एग्री हैं मेरे साथ? अच्छा, सबसे पहले ये चीज है कि वो अवैस इकबाल वाला जो मामला है उसको आपने चूंकि दलील के तौर पर और एक केस के तौर पर पेश किया है, तो मैं उसका सामने रख देता हूँ। अवैस इकबाल के साथ शरायत में ये चीज़ करीबन 10 दिन पहले तय हुई थी कि किसी किस्म की टोंटबाजी, जुमलाबाजी की पहल नहीं की जाएगी, वरना दूसरी पार्टी को हक होगा कि वो फिर जो चाहे कर सके। ठीक है, ये डील तय हुई थी। उसने कहा डन। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। ठुकाई की रात पहले की बात। आए, टाइटल चेक करें ना जरा, टाइटल से पता चलता है क्या मजा आया। टाइटल लिखा हुआ है ठुकाई की रात पहले की बात। वो एक फोन कॉल है जो प्री डिबेट हमारी डिस्कशन हुई थी, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस सेटल हुई थी कि अगर कोई किसी किस्म की पहल करेगा उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करने का दूसरी पार्टी को हक हासिल होगा। अब आप मुझे बताएं, आप सारी गुफ्तगू 6 मिनट की है, किसी के लिए मुश्किल नहीं है, 6 मिनट की है, वो वायरल है। आप सुन के मुझे बताएं, सर्च कर लें अवैस वर्सेस आमिर, ऐसे लिखें, वो आ जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि उसमें पहल किसने की थी, नंबर 1। नंबर 2, जुमले मैंने उसकी माँ, उसकी बहन के मुतालिक कुछ भी नहीं कहे, ना उसने मेरी माँ बहन के मुतालिक कुछ कहा। पर्सनल अटैक हुए हैं, जुमलों का तबादला हुआ है। उसने करते करते जब उसको लगा कि बात मेरी हैसियत से बढ़ गई है और आमिर जो है उसके जुमले काबू नहीं, उससे सेटल नहीं हो पा रहे, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी की। जब उसने ब्लास्फेमी की है उसके बाद मैंने वो बात की है कि तू छक्का है, तू नहर पे खड़ा होता है, तू 500 का कारीगर है, तेरी मैं बजावांगा, बैंड बजावांगा। फिर मैंने वो जुमले कहे। अच्छा, अब अगर आप मुझे कहें कि आपने वो ठीक किया या आपको वो करना चाहिए था या ऐसी सूरत में आपसे बात नहीं हो सकती, इस तरह के जुमले कहें, तो वैसे इकबाल साहब नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हाँ नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ठीक है, ठीक है, आपने कहा मैंने इसका एंगल दूसरा है, इसका एंगल दूसरा कि अगर आप जब उसने पहल की उसके बाद ये गुफ्तगू नहीं, जब गुफ्तगू नहीं हो सकी तो इसका हमें रिजल्ट हासिल, रिजल्ट ये मिला कि आपने एक ऐसे शख्स से गुफ्तगू नहीं की जो कि बदजुबान था। हाँ जी, तो यही असूल अगर अप्लाई किया जाए कि अगर, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने मिर्जा साहब के बारे में, आपका दावा यह है कि आपने कोई भी अल्फाज ऐसे नहीं कहे जो कि मिर्जा साहब की कुतब के अंदर से या उनके लिटरेचर के अंदर से नहीं मिलते हैं। ओके ओके, आपका पॉइंट समझ गया मैं। हाँ ठीक है, गुड, आपका उसी म्यार पर आप, उसी म्यार पे आप कहते हैं, ठीक है, उसी म्यार को बरकरार रखते हुए आप जहाँ जबरदस्त, गुड, अब मुझे आपका पॉइंट समझ आया। तो वो पॉइंट क्लियर हो गया। वो अवैस के साथ जो मैंने मामला किया वो मैं एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात करेगा या मुझ पर को पहल अटैक करेगा, एक बार नहीं 1000 बार करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अच्छा जी, नंबर 1, उससे ज्यादा भी कर दूंगा अगर मेरा बस चलता हुआ तो, नंबर 1। नंबर 2, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अच्छा,
अब आ जाते हैं इनकी तरफ के, क्या ये उसूल इनके साथ बात करने का हो सकता है? तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ प्यारे भाई। मैंने कल भी जब आप शराइत तय कर रहे थे, मुझे उनमें से एक एक शर्त मंजूर है, एक एक शर्त। आप मुझे बताएं उससे बढ़कर वो शर्त हो सकती है? मिसाल के तौर पर कोई पहल नहीं करेगा, मेरे से ये भी बात आप करवा दें कि अगर कोई बिलो दी बेल्ट जाने में पहल करता है, आप उसकी शिकस्त लिख दें। जो पहल करे बिलो दी बेल्ट जाने में उसकी शिकस्त लिख दें, मगर शर्त यह है कि जिस वक्त बिलो दी बेल्ट जाया जाएगा उसको पॉइंट आउट करने पर मॉडरेटर वहां डिबेट को रोकेगा, उसको रिकॉर्डिंग को सुनेगा और फैसला करेगा मॉडरेटर कि किसने पहल किया। वेरी वेरी गुड पॉइंट, मतलब ये बेहतरीन पॉइंट है, बेहतरीन पॉइंट जो भी आपने कहा। हाँ, उधर रुक जाएगी। आगे नेक्स्ट जी, हाँ पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, अगर वो मिर्जा साहब के ऊपर दरूद पढ़ना चाहते हैं, ये चीज कहना चाहते हैं, तो फिर मुझे मेरा अकीदे का इजहार करने का हक होगा, बड़े अदबी अंदाज में, बड़े जो है ना वो सलीके के अंदाज, ठीक है, कोई गाली गलोच नहीं। मैं जब ये कहता हूं मुझे मेरे अकीदे का इजहार का हक हासिल है, तो मैं अल्लाह माफ करे ये कह रहा हूं तो कि मुझे गालियां देने का हक है, तो फिर तो डिबेट ही खत्म होगी, वो तो पहली शर्त छूट गई। नहीं, एनी कंडीशन जो किसी दूसरी कंडीशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्राडिक्ट करती होगी वो ऑब्वियसली पास ही नहीं होगी। तो मैं ये कहता हूं उनको अपने जो भी अकीदा है उसका इजहार का हक हासिल है, मुझे मेरा जो अकीदा है उसका इजहार हासिल है। अगर आप सुने जरा, अगर ये कहें कि नहीं हमने अपना अकीदा तो जाहिर करना है मगर मुसलमानों को ये हक हासिल नहीं है, उन पर पाबंदी लगानी है, तो फिर ये शर्त दो वे होगी, फिर उनको भी ये हक हासिल नहीं है, वो भी फिर मिर्जा साहब कहेंगे, मैं भी मिर्जा साहब कहूंगा। सिंपल। नहीं तो होस्ट में तो ये बात ही नहीं होगी ना, अगर होस्ट होती है। हाँ, तो होस्ट होता है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि क्लियर है। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 आ जाते हैं मिर्जा साहब की सदाकत मौजू, ठीक है, 2 वे, मिर्जा साहब की सदाकत, मिर्जा साहब के उसूलों पर। जमाते अहमदिया का कोई फर्द, आजम सैफी को मैंने तकरीबन 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, एक बंदे को उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा जी चैलेंज दे रहे हैं आजम सैफी साहब, मैंने कहा मंजूर है, ऑडियो भेजी हुई है, कहता है पेपर पे लिख के दो, पेपर पे लिख के दिया हुआ है। वो बंदा इतना भागा हुआ है, इतना डरा हुआ है, उसको यकीन ही नहीं था कि आमिर मेरी ये शराइत पूरी कर देगा। अब शराइत पूरी की है, 1 हफ्ता होगा, वो बात करवाएं, बात इनके साथ, सलीम मीर को ले आए, मीर सलीम से तगड़ा इनका बंदा तो कोई नहीं है ना इस वक्त, या है तो बता दें कि जी मैं तगड़ा हूं उससे कर जी। तो मैं हाजिर हूं प्यारे भाई, मैं हर शर्त पूरी करने को तैयार हूं, आप अपना बताएं। ये तो होगी फ्यूचर की बात है। अब प्रीवियसली जो आप पर इल्जामात हैं जी, जो आपके ऊपर कुछ इल्जामात हैं कि आपने नाज़ेबा या फहश गुफ्तगू जो है वो आपने इस्तेमाल की है, इसका तायन जो है, इसका तायन कैसे होगा? मतलब मैं अब आपसे कहूँ भी इसका तायन आप, तो इसका तायन तो ये है कि ये तो फिर ओपोनेंट जो हैं, जो आपके मद्दे मुकाबिल हैं, जो आपके अगेंस्ट हैं, वो लोग ये बात करेंगे। अब यहाँ पर ये बात है कि आमिर भाई अगर ऐसी गुफ्तगू मिल गई, जो कि अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए मैं सारी बात है, मैं अगर ऐसी गुफ्तगू मिल गई जो कि बहुत ही जिसमें बहुत ही ऐसी लैंग्वेज हो जो कि मतलब शायद ऑन ब्रॉड बताने वाली ना हो, तो फिर क्या करेंगे फिर हम? हाँ ठीक है, उसका ऐसा हम हल करते हैं कि जमात अहमदिया जो डिमांड कर रही है या जो उनका कंसर्न है वो उसको स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि आमिर ने ये बात इस जगह पर इनके मुतल्लिक कही है। मिसाल के तौर पर अगर ये कहें कि मैंने किसी इस्लामोफोबिक हिंदू के बारे में कोई बात की है, तो ठीक है, फिर फतवा लगाते हैं कि जिस किसी ने किसी दूसरे धर्म की औरतों या किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं के बारे में बात की है, उस पर मिलकर फतवा लगाते हैं कि उस बंदे की शरई हैसियत क्या होगी, बशमूल मिर्जा साहब और जमात का लिटरेचर, ये फिर शामिल कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये कहा जाए कि आमिर हक ने जमात अहमदिया के मुतल्लिक को फाहिश कलामी की है या कोई गलत बात की है, उसको सामने लाया जाए। अगर मुझे लगा कि ये बात यार मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे यानी मेरे पास कोई शरई जवाज़ नहीं था या शरई उज़र मौजूद है इस बात का, मैं उस पर ये सुनना, वैसा भी सुनो जरा गौर से, मैं उस पर लाइव ब्रॉड में भरे मजमे के सामने माजरत करने को तैयार हूँ। इससे बड़ी बात हो सकती है कोई? मैं माजरत करने को तैयार हूँ, मगर शर्त यह है कि ये साबित करें कि मैंने पहल की हो। नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास कोई शरई उज़र ना हो वो बात करने का, यानी ना रेफरेंस हो, ना मेरे पास कोई जेन्युइन दलील हो, मगर मैंने किसी अपनी मर्जी के लिए, अपने शौक के लिए कर दी हो, मैं उस पर माजरत करने को तैयार हूं। इससे बड़ी बात नहीं मैं कर सकता, ठीक है? लेकिन आमिर भाई इसमें एक चीज भी ऐड करें ना, सिर्फ आप क्यों माफी मांगेंगे? अगर यही अल्फाज उनकी तरफ से निकल आए, साबित हो गए, तो क्या वो माफी मांगने के लिए तैयार है? देखिए वो तो भाई हमारा उनसे मेरी बात पता क्या है? हमारा बात ये है, हमने बात करनी अपनी, हम जिम्मेदार है अपने। दर्द दिल भाई, मैं आप वैसे तो देखिए कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन एक चूंकि हमारी कम्युनिटी है, हम मुसलमान भाई हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं, दूसरे की बात कर सकते हैं। माफ़ी मंगवाना या ये वो चीज़ें, ये मेरा ख्याल है ये ऐसी बातें, इसके ऊपर गुफ्तगू अगर करनी ना हमने। नहीं, मैंने खुद कहा है कि मैं माजरत, देखें
उस दिन राना नवीद साहब की ब्रॉड के ऊपर अहमद उपल साहब आए हैं। अहमद उपल एक अच्छा नाम है जमात अहमदिया, यानी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। ठीक है, एक दो बार वो पटरी से उतरे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी उनके मुंह से निकल गई, मगर ओवरऑल उनका बयानिया ये नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मैं उनकी इज्जत करता हूँ अहमद उपल साहब की। अहमद उपल साहब ने मुझे कहा, आमिर हक साहब आपसे बात हो सकती है, मगर मेरी जमात को आप पर यह गुस्सा है कि आप मिर्ज़ा साहब के मुतालिक सख्त कलामी करते हैं। मैंने बिला शर्त और बिला कैद और बिला हद मैंने अहमद उपल साहब से कहा, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैंने दिल दुखाया हो, आप बात करें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कभी भी पहल नहीं करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। उन्होंने मुझसे बात की घंटों, एक बार नहीं 2-3 बार। क्या समझ आया इससे? इससे ये समझ आया कि इन्होंने हवा बनाया हुआ है, ये ड्रामेबाज लोग हैं, ये फ्राडिये हैं, ये 2 नंबर हैं, ये धंधेबाज हैं। अगर बात करने वाले लोग हैं तो वो कर सकते हैं। लुकमान शाही साहब ने मेरे साथ बात की हुई है। फ्राडी का लफ्ज दिखाएं आप, मिर्जा साहब की किताब से फ्राडी का लफ्ज दिखाएं। कौन सा फ्राडिये का? रुके जाएंगे, रुके एक मिनट, मुझे लैपटॉप ओपन करने दे। ठीक है, ये जमात की लिटरेचर दिखा दूं? हाँ ठीक। दूसरा अवैस भाई एक चीज और देखें, ये एक असूल जो रखते हैं ना कि अच्छा, ये फिर मैंने लेके चलना है उसूल साहब के लिए, ठीक है ना वैसा? ठीक है, मैं इसलिए देखें, मैं तो सीधी बात की है, मैं तो अनबाइस होकर आपसे सीधा डायरेक्टली आपसे पूछा है। दिखाएं भाई आप ये वर्ड बोलो। ठीक हो, नहीं अच्छा कहा, अच्छा। चले, जितनी देर तक वो ढूंढ रहे हैं, मुझे एक बार बता दें अवैस भाई, मैं निकालता हूँ जी। अवैस भाई जी जी हाँ जी, ये देखें, एक असूल बड़ा अजीब सा है, मुझे इसकी समझ नहीं आती। अगर मैं कहूँ यार मुझे गाली ना देना, अगर मुझे को तुम गाली दोगे या बैड वर्ड यूज करोगे तो फिर मैं भी यूज करूंगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने एक गाली दी, आप एक गाली मुझे दें। ये कौन सा असूल है दुनिया का यार? फ्रॉडिया वर्ड या फ्रॉडिया जैसा वर्ड को ही फ्रॉडिया साबित कर रहे हैं, वो चल जाएगा? थोड़ा सा मैंने कहा जान लो। मैं आमिर भाई आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। हाँ, मैंने कहा अवैस भाई आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। हाँ, मैंने कहा कि फ्रॉडिया वर्ड या फ्रॉडिया से मिलता जुलता वर्ड दिखाऊं, या अगर मिर्जा साहब को ही फ्रॉडिया साबित कर दूं रेफरेंस के साथ, तो वो भी चल जाएगा? नहीं वो ये बात ना आप करें यार, ये आप देखें ना, अभी ये असूल हमने तो देखे भाई पूछना तो है ना, पूछूंगा, अल्लाह माफ करे, क्या हो गया भाई, इतना छोटा दिल इनको कहें जमात अहमदिया ना करे जी। खैर बात जी वैसे ही बताएं मुझे यार, क्या बताऊं यार दर्द दिल भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आता यार, मैंने कुछ नहीं बताना यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम चिमा भाई, क्या हाल है दर्द दिल भाई, ठीक ठाक है? अच्छा, वैसे में मूसा साहब भी नीचे आए हैं, मूसा साहब के लिए भी एक रोड लगानी है, आप इन मामला से थोड़ा फ्री हो लें। तो मूसा साहब ने भी मिर्ज़ा साहब के ऊपर एक जगह पर झूठ बोल दिया हुआ, तो उसके लिए मूसा साहब ने एक अपने वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया हुआ, ठीक है? तो उसके लिए ये है कि मूसा साहब के लिए भी थोड़ी सी ब्रोड लगानी है, वो मैं आपको एक चीज़ भेजूंगा, तो वो वसीयत के मतलब है ना, बिश्ती मकबरे के मतलब, ठीक है? तो उसके लिए वो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब के ये अल्फाज नहीं है, ठीक है? और मिर्ज़ा साहब ने उसके अंदर अपनी हाशराई नहीं की हुई ना, बिल्कुल। तो मूसा साहब जो उनसे उनके लिए भी एक चीज़ लगानी है थोड़ी सी। चीमा भाई इसमें एक टॉपिक और भी ऐड कर ले, एक टॉपिक और भी ऐड कर लें। किसी ने इनसे पूछा कि मिर्जा साहब को कुरान में साबित करें, तो इन्होंने कहा जी ये तो गलत बात, आप चवल मार रहे हैं, घटिया बात कर रहे हैं। लेकिन मिर्जा साहब की जो राइटिंग है, अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा, ये तो मिर्जा साहब इन्होंने इल्जाम लगाया। वही बात दर्द दिल भाई, आप ही जी बात एक बात हो नहीं रही, तो अभी हमने अगली बार में अगला मौजूद आप रखवा। वो जो चीमा नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है दर्द। हाँ, वो मैं टॉपिक मैं नोट कर रहा हूँ, ये टॉपिक 1 by 1 लगाते हैं। असल में वैसे एक ब्रॉड एक थोड़ा सा बातचीत करवाना चाह रहा है, तो वो इस मामले से थोड़ा फ्री हो ले, तो फिर ये 2-3 टॉपिक है, इनके ऊपर बातचीत जो उनसे वो लाजमी करते हैं ना। ये देख लें जी, ये 2 हवाला जाते हैं अवैस भाई, 2 हवाला जाता है जी जी। फ्रॉड को उर्दू में कहते हैं धोखा दही या धोखा देना, फ्रॉड को, स्कैम को भी फ्रॉड को ये कहते हैं। तो 18 की 643 के अंदर मिर्जा साहब कहते हैं, सुनिएगा, चोरी, खूनरेजी, बदकारी, जुल्म, खयानत, शिरक, झूठ, झूठी गवाही देना, तकब्बुर, रियाकारी, हरामखोरी, दगा, दशनामदही, धोखा देना, बदअहदी की, ये सारा मिर्जा साहब ने कहा है कि ये चीज़ें मौजूद हों जिन लोगों के अंदर उनकी निजात नहीं हो सकती। उनकी किताब है गुनाह से निजात क्यों कर मिल सकती है, छोटा रसाला, तो 18 के उन्होंने कहा। नंबर 1 एक वाला। इसी तरीके से जंग मुकद्दस के अंदर 6 के 262 के ऊपर मिर्जा साहब कहते हैं, जनाब ने मुझे धोखेबाज जो ठहराया है उसके लिए मेरी तरफ से आपको सलाम पहुंचे, जो मुझे धोखेबाज ठहराया है, ठीक है जी। तो ये मिर्जा साहब कोट कर रहे हैं एक खत को
हैनरी मार्टिन क्लार्क, प्रेसिडेंट अल जानिब ईसाई साहिबान, ठीक है जी। तो ये दस्तखत उनमें हुए हैं। अच्छा, तो आगे मिर्जा साहब का उसमें जिक्र मिल जाता है। तो ये दो हवालाजात मैंने दिए हैं जो धोखाधही के ऊपर हैं। अच्छा, इसके अलावा धोखे के लिए शदीद वर्ड, जो एक्सट्रीम वर्ड इस्तेमाल होता है, वो होता है दजल। मिर्जा साहब ने दजल के ऊपर बहुत बड़ी तादाद के अंदर बात की, वो आपको पता है, दज्जाल को कह सकते हैं। अगर आप मुझे कहें कि मुझे फ्रॉड, स्कैम वर्ड या फ्रॉड वर्ड, फ्रॉडिया, ये जमात के लिटरेचर में चाहिए, वो भी मैं आपके लिए निकाल देता हूँ। अभी मैंने आपको उसके अल्टरनेट यानी सिनोनिम्स दिए हैं उर्दू में, ठीक है, तो मगर मैं आपको उसका ओरिजिनल भी दे देता हूँ। आखिरी खत आमिर भाई, आखिरी खत क्या आखिरी खत में खुद लिखा हुआ कि मुझे इस नामों से मशहूर किया हुआ। अच्छा देखिए, अब बात यहाँ पर यह है आमिर भाई कि मैं फिर दोबारा ज़रा मैं आपको एक बात करता हूँ। देखें, अब जो अल्फाज है ना, अब मैं आपको यहाँ पे देखें, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, अब अल्फाज का चुनाव और उस अल्फाज को इस्तेमाल किस जगह पे करना है, मतलब उसका मुअय्यन एक मीनिंग जो है, जैसे हम कहते हैं, एक तो है ना लुग़वी एतबार से, एक है उसका इस्तिलाही मफ़हूम। जो इस्तिलाही मफ़हूम है उसको अगर हम देखें तो वो डिपेंड करता है कि ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया ये किस जगह पे इस्तेमाल किया गया, और ये जगह ठीक। सॉरी, फ्रॉड का वर्ड, देखिए मुझे अपना क्लियर करने दें, आप तो फिर जब बात करवाएंगे, मेरी आदत है मैं हवाले के साथ बात करूं। ये मलफूजात वॉल्यूम 8 है और पेज है 118, अल इस्लाम इंग्लिश की वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है। उसमें मिर्ज़ा साहब के मलफूजात का जो टुकड़ा वल्लदीना जाहदू फीना के कॉन्टेक्स्ट में उसमें उसको ट्रांसलेट किया गया है, उसमें लिखा हुआ है फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड भी लिखा हुआ है। ये लिखा है इफ यू डिस्प्ले मिसचीफ, फ्रॉड एंड स्लैकनेस यू विल बी रून्ड अर्लियर देन द अदर्स। Everybody should carry his load and act according to his pledge. Nothing can be said as to how long a man is to live. Maulvi Abdul Karim has passed away. Every Friday we have to offer the janaza of someone. Now is the time for you to do whatever you have to. When death approaches, there's nothing that can postpone it. He who does good deeds before the time of his death approaches, it is hoped that he will be purified. अब इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर तुम फ्रॉड करोगे, गुनाह करोगे या लोगों को धोखा दोगे तो ये चीज़ तुम्हें नुकसान पहुंचती है, लोगों को मरना है। मलफूजात वॉल्यूम 8 पेज 118 alislam.org मलफूजात। प्लेज ऑफ इनिशिएशन, ये प्लेज ऑफ इनिशिएशन के तहत ये बात की गई है। अब फ्रॉड वर्ड यूज हुआ है, फ्रॉडुलेंट वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, स्कैम वर्ड यूज हुआ है। तो जी, अब मिर्जा साहब को अगर साबित कर दूं तो फिर मुकम्मल हो जाएगा हवाला। अवैस भाई अभी यहाँ रुक जाऊं? नहीं, मिर्जा साहब को साबित ना करें आपकी। अच्छा ठीक है, जी। अच्छा, बात ये है कि इसके अंदर अब चीज़ ये है कि जो एक वर्ड के मफ़हूमन जो उसके मीनिंग होते हैं ना, वो वर्ड जब अपनी जगह पे जाके लगता है तो कभी वो अच्छा मीनिंग बना देता है, कभी वो बुरा मीनिंग बना देता है। मतलब एक ही लफ्ज़ है, वो आप जब है यार इनका इस्तेमाल किया जाए और यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रॉड वर्ड किसी जगह पर अच्छा भी होता है, तो बस मिर्जा साहब को मैंने अच्छाई में कहा है, फ्रॉडिया। जी सॉरी, थैंक यू। आप उनको लाएं, आप कोलैटरल डैमेज में रगड़े जाएंगे, आप उनको लाएं जिनको मैंने जरा करना है, जी उनको लाएं। मुतकल्लम अपने बयान का खुद जिम्मेदार है ना सर, खुद तशरीह बयान करेगा मुतकल्लम। यार वो मैं करता हूँ कि मैं पूछता हूँ यार, असल में सबसे पहले बात ये है, ये नहीं सुधर सकते यार। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि भाई सुधर नहीं सकते। मैं क्या, अल्लाह माफ करे, छलांग मार दी है या मैंने क्या किया है भाई? मुझे बताएं, नहीं सुधर सकते। मैंने क्या किया? पानी के गिलास में उंगली घुमा दी है, या दही जो है मैंने अंगूठे से चाट लिया है? मैंने कौन सी चीज़ मैंने कोई ऐसी गुस्ताखी कर दी है? या सोफे के ऊपर मैंने उछलना शुरू कर दिया है? या डाइनिंग टेबल पर मैंने तकिया रख के सोना शुरू कर दिया है? हाँ जी, कमाल हो गया। अब मैं आपकी गुफ्तगू जो है ना वो ढूंढूंगा ऐसी, बल्कि मैं एक वॉइस मैसेज करता हूँ, रुकिए जरा, मैसेज उनको कहें। लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि आप आमिर भाई की गुफ्तगू तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिस बंदे के साथ आमिर भाई की गुफ्तगू करानी है, अगर उसकी ऑडियो भी गुस्ताखियों वाली निकल आई, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? सर सवाल ये है, देखिए मेरी बात सुनो। सवाल ये है कि एक बंदे को इतना कंट्रोवर्शियल कर दो, एक बंदे को इतनी बम्बार्टमेंट कर दो कि जमात सिर्फ अपनी तशरीफ को, अपने इमेज को बचाने के लिए उसको मैं रिवर्स गया हूँ। आपने नोट नहीं किया? ये देखे, मैं जोश के अंदर होश नहीं खोता, मैं वापस चला गया हूँ। मैंने जैसे ही आपके चेहरे का तगय्युरात देखे हैं,
और चेहरे का असर बदलते देखा है, और मैंने देखा है कि आपके अंदर से मुझे अहमदी मुरब्बी नजर आया, मैं वापस चला गया हूँ। दी मुरब्बी चेहरे से नजर आया। देखिए देखिए, सीधी बात है, ये अपने इमेज को बचाने के लिए एक बंदे को इतना कंट्रोवर्शियल कर देना चाहते हैं, इतना कर देना चाहते हैं वल्लाह कि इस बंदे पे कुछ भी हम डाल दें। जी, ये मेरे से पर्चे पान ले। यार वो नीचे चाय का मैंने बोला था यार, जाना जरा उसको भेजना, जरा हुसैन को बोलना चाय और वो पराठा मैंने बोला। हाँ ये वैस जरा दो जवाब फिर इसका कि जिस बंदे से गुफ्तगू होगी उसका क्या करेंगे फिर? यार चीमा भाई बात सुन, तू भी भाई स्टार्ट से इसी ब्रॉड में बैठा है, तू भाई तेरा काम भी है ये सारा कुछ कराना, तो मेरे ऊपर हर चीज डाल देता है भाई, तू भी कराएगा। हाँ, दूसरा ये है चीमा साहब, तुसी भाई गल ना कराना दी गल ना करो। तुसी गल होन दे हो, कोई नहीं, मीर सलीम को लाएं जी, कोई बात नहीं, मैं हाजिर हूँ। देखिए मुझे शरायत मंजूर है, मैंने तो रख दिया जी। आमिर भाई ये चीमे के पास एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन होती है, पता है आपको, एक एक बात की हाइड इन्फॉर्मेशन इस बंदे के पास होती है, पता नहीं कैसे जाती है, और कबल वक्त जो है ना ऐसी चीजें पता होती हैं, ये इसका मुझे समझ नहीं थी। यही मामला है ना बस। अच्छा मैं अब उनसे डिमांड करता हूँ भाई कि जो है मुझे वो मैं आपके कि आपने जो नहीं है वो ऐसे ही आप बिल्कुल करें। देखिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर मुझे एक चीज बताएं, अगर सलीम मीर साहब यहाँ बैठे होते और हम 1 to 1 आपके साथ मुखातिब होकर गुफ्तगू कर रहे होते, तो अगर मैं कोई ऐसी चीज करता कि जिसमें पहल हो, जिसमें कोई गलत बात हो, तो आपके पास इख्तियार होता कि आमिर भाई देखो ये वजह है ना, फिर वो बात नहीं करते, मैं लेके आया हूँ। तो यार मैं असल में आमिर भाई मैं यही बात उनसे कहता हूँ, आप अगर मेरी बात को समझे ना, मैं उनसे कहता हूँ कि देखें आप देखें, इससे बढ़कर बात क्या होगी भाई, आप दोनों एक दूसरे को बात ना करें, डायरेक्टली एक दूसरे को एड्रेस ना करें भाई, आप सिर्फ मुझसे बात करें 1 to 1। देखें जब आप मुझसे मुखातिब होंगे तो इसका मतलब आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आप अपना सिर्फ मुद्दा बयान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर भी जैसे अब आज मीर सलीम साहब ने फिर कुछ ऐसी अल्फाज कहे सिक्का भाई के बारे में, बात ये कि देखिए वो मैं ऐसा नहीं है कि यार मेरे अंदर वो नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, या मेरा अपने भाइयों से मेरी मोहब्बत नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं उसको, हालांकि वहाँ पर उनकी ज्यादती थी ये सलीम मीर साहब की, उनको नहीं चाहिए था कि ऐसे अल्फाज, ठीक है आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैंने फिर भी बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं यार, मैं होस्ट हूँ और मैं कुछ जख्म जो है, कुछ तकलीफ जो है मैं बर्दाश्त करता हूँ, कोई बात नहीं। ये वो नहीं करते। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ये चीज बताएं, अफसोस इस चीज का है कि ये कितनी नाइंसाफी की तकसीम है कि ये अपने वक्त के अंदर तो कुछ भी बोलना चाहते हैं, किसी के मुतल्लिक भी बोलना चाहते हैं, और कोई अंदाज इनको चुभता नहीं है। यानी ये कैसी बेहूदगी है, और कैसी ये बद तहजीबी है, कैसी ये बद अखलाकी और बद नज़मी है, और कैसी ये बद किरदारी और बद सीरती है कि ये कितनी ही खतरनाक ये हरकत है, और कितनी ही गैर इंसानी ये तरीका है। और गैर इंसानी दिखा दो, गैर इंसानी वर्ड यार, मैं अपने दूसरे रूम में आता हूँ, आप फिर मेरी दौड़ लगवा दे, रुके जरा यार नहीं, मैं चला जाऊंगा, निकल आएगा। अच्छा देखें दूसरी चीज, ये मुझे ये पूछना है, मैं म्यूट सा, आपने मुझे स्टेज पे लिया, पता क्यों? जस्ट फॉर योर ऑनर, ठीक है ना, मैं आपके ऑनर में, कि यार एक भाई ने मुझ पे ट्रस्ट करके स्टेज पे लिया है, उसने ये ट्रस्ट किया कि यार जब तक इसको मैं नहीं कहूंगा ना, ये माइक नहीं ओपन करेगा, और मैंने नहीं किया। जब वो बंदे की रेपुटेशन हुई, आप रिकॉर्डिंग निकाल के देखें यार, 3 बार उस बंदे ने पता है क्या बात की है, अगर उसकी तैयारी नहीं है तो उसको भेज दो, अगर उसकी तैयारी नहीं है, मैंने किसी बड़े मुल्ला का नहीं हवाला दिया, मैंने करोड़ों लोगों के मानने वालों का, करोड़ों लोगों ये 3 से 4 बार कहा है। वो केड़ा तेरा दिल है जड़ा रजदा नहीं, केड़ा तेरा ढिड जड़ा भरदा नहीं, केड़ी जड़ी तेरी जुबान जड़ी खुश्क नहीं होती, मीर क्यों तू बस नहीं करता, तू मरदा नहीं। मेरी बात सुने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसामा भी बात कर सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसामा भी बात करने के लिए तैयार है, बल्कि मैं 2-3 दिन पहले उसामा के साथ उधर ही बैठा हुआ था। नहीं, बात सारी करने के लिए तैयार होते हैं, तरीकाकार गलत है ना इनका गुफ्तगू, ये मसला हमारा। नहीं अवैस भाई, बात सारे हमारे मुसलमान, आप भी कर, अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से मैंने आपको देखा, आप बात करते हो, आप जो जड़ का क्वेश्चन होता है, रूट से उसको पकड़ते हो, मैंने नोट किया है। और 1-2 बार ऐसा हुआ है, ये आपको पता है कि मैंने आपकी गुफ्तगू बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनी है, फिर जब मुझे लगा कि सामने वाला कच बहस कर रहा है, तो मैंने फिर आपको मैसेज कर दिया, मैंने कहा यार बस हो गई है, चलते हैं, फारिग है, मैं निकल आया वहां से, जब तक अच्छी बात चली। तो बात हमारा हर बंदा, आप भी अच्छी बात कर सकते हो, मसला ये कहने का है कि इन्होंने जिन चंद लोगों को कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है, ये इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। ये जो दादागिरी और गुंडागर्दी
یہ جو کرنا چاہتے ہیں یہ چیز نہیں چلے گی کہ بھئی ہم ہر بندے کو ہائی جیک کریں. ابھی یہ ٹک ٹاک کی دنیا ہے, سوشل میڈیا کی دنیا ہے, ابھی 300 سال نہیں گزرے جماعت احمدیہ کو کہ پوری دنیا کی حکومت یہ کریں گے اور فیصلے لوگوں کے گھروں میں پکے گا کیا, یہ فیصلے کریں گے کہ جی آپ کے گھر میں آپ کیا کھا رہے ہو, اچھا نہیں ایسے نہیں کھانا, میں بتاتا ہوں کیسے کھانا. یہ اتنی زیادہ بدماشی ابھی نہیں شروع ہوئی جماعت احمدیہ کی, یہ آپ اپنی جماعت کے لوگوں پہ کریں, ہمارے سامنے نہ کریں. ہم آپ کے دانت بھی کھٹے کر دیں گے اور آپ کے کانوں میں شوں شوں بھی کر دیں گے دلائل کے, ٹھیک ہے نا. ہاں بندے سے پتر بن جاؤ, یہ بات ہمیں کوئی دقت نہیں اس میں. تو یہ مسئلہ ہے. ہمارے درمیان جناب چیمہ صاحب تشریف فرمائیں. جی چیمہ صاحب سے کہیں نا, جی چیمہ صاحب بھی کوئی جادو چلائیں. جی مجھے تو عمر بھائی کی یہ بات بڑی اچھی لگی ہے کہ کانوں میں شوں شوں کر دیں گے, لیکن ساتھ ہی اینڈ پہ میں کچھ اور سمجھا لیکن ساتھ ہی ان کا دلائل کے, تو میں اس بات پہ اوپر تھوڑا سا گہری سوچ میں چلا گیا. عامر بھائی شوں شوں کا لفظ بھی میں نے پوچھنا نہیں یاد رکھا. یار شوں شوں کا مطلب شوں شوں دیکھیں شوں شوں از این ایکسپریشن جس کا مطلب ہے تیزی سے کسی چیز کا پاس سے گزرنا. دیٹس اے ساؤنڈ ایکسپریشن یار, شوں شوں کر کے جسے کہتے ہیں. اچھا آپ کو پتا چیمہ صاحب کی بھی ڈیبیٹ ہے یا ٹو دا پوائنٹ. میرا بتاؤں اس میں کیا موقف ہے. دیکھیں میں اس میں بات یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی بات ہے اور سمپل سی بات ہے. کل ہمارے ایک بھائی نے بات کی تھی کہ دیکھیں اگر تو واقعی ہی پہلی بات تو یہ کہ جری اللہ صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جری اللہ صاحب بات کرنا نہیں چاہ رہے, ٹھیک ہے, اچھے انسان ہے, پڑھا لکھا انسان ہے وہ, ٹھیک ہے, اور وہ بات کرنا چاہ رہا ہے. اب وہ بات کس سینس میں کرنا چاہ رہا ہے یہ بہت زیادہ اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ والی ہے کہ کسی بھی طور پہ نیچے لگنے کی ویسمیاں بات ہے ہی نہیں ہے. جری اللہ صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ آئے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بات کرانے کا طریقہ بڑا سادہ اور سمپل ہے. آپ کا کام بنتا ہے ویسمیاں, آپ اس سارے موضوع سے اس سارے سسٹم سے صرف بات چیت کروانے کی حد تک آپ رہیں, ٹھیک ہے نا. جری اللہ صاحب اپنی طرف سے ایک موڑ لے ہیں, میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اپنی طرف سے ایک بندہ کر دیں کہ بھائی اس کو جی موڑ بنایا جائے, کوئی ایشو والی بات نہیں. ایک طرف سے سیکر بھائی آ جائیں, سیکر بھائی آ کے اپنا ایک بندہ کہہ دیں کہ میری طرف سے موڑ بنایا جائے. آپ اس معاملے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. پیچھے سے ہٹ سے مراد ہے کہ آپ کی بروڈ ہو, ٹینشن ختم ہو اس چیز کو لے کے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو بات نہیں آئے گی نا بالکل بھی. میری بات میرا بھائی, میں نا تمہیں ایک جڑ بتا. یہ جڑ یہ ہے کہ جو بھی شخص پہلی باری لیتا ہے یا پہلی ٹرن لیتا ہے تو پہلی ٹرن لینے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, اس میں تھوڑا سا ٹونٹ ہوتا ہے, ہلکا پھلکا سا. اب وہاں پر دو چیزیں ہیں. سیکنڈ ٹرن میں اچھا یاد ہوگا تمہیں جب جریلا صاحب کے پاس جب 7 بجے ڈبیٹ کے لیے سیکر بھائی گئے تھے تو پہلی ٹرن دی تھی جریلا بھائی نے. اس ٹرن کے اندر انہوں نے تھوڑے سے ٹونٹ یا کچھ ٹونٹ کے الفاظ کچھ استعمال کیے, تو سیکر بھائی نے دوسری ٹرن میں مجھے مخاطب کیا کہ نو ورڈ دیکھ لو, کیونکہ میں نے اپنی براڈ پہ انہیں کہا تھا کہ آپ نے سیکر بھائی کہ آپ نے اگنور کرنا کہ یار اگر وہ 1-2 بار کریں بھی تو آپ نے ٹونٹ کو اگنور کرنا ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو. اگر کوئی مرزا کی کتابوں پر کسی کو کوئی سمجھتا ہے کہ یار یہ اعتراض ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ اس کا سب سے بہترین جواب دیں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے اس ٹونٹ کو برداشت کرنا ہے, تو انہوں نے مجھے مخاطب کیا وہاں پر کہ تم نے کہا تھا کہ اس ٹونٹ کو برداشت کرنا ہے, اور انہوں نے پہلی باری میں انہوں نے لیٹ اٹ آن کر دیا. پھر آئی سیکنڈ اٹیمپٹ. اب سیکنڈ اٹیمپٹ جب ہوئی, اس سیکنڈ اٹیمپٹ میں آپ دیکھو گے تو کافی مطلب الفاظ کے رسی باندھنا اور یہ وہ کہا گیا. اب پھر اگر وہ رسی باندھنا گالی تھی تو پھر کیا ہوا, پھر سیکر بھائی کی باری ہے. سیکر بھائی نے ڈائریکٹ اٹھایا اور ان کے کابر کو, مطلب ان کا نام تو نہیں لیا کابر کا, لیکن وہ مولانا امرت سری پتنی جو بھی نام ان کو کہا کہ ان کے ہاتھ میں رسا تھا تو کسی تو اس ٹرنیور میں ٹھیک ہے مولانا امرت سری صاحب کے بہت تھے کیسے کہتے ہیں جن سے وہ لڑ رہے تھے, نام تھا علمی. لیکن اب چونکہ ہم جماعت احمدیہ سے بات کر رہے تو ڈیفینیٹلی وہ بات مرزا غلام محمد صاحب کے اوپر ہی جا رہی تھی, تو انہوں نے انڈائریکٹلی نام لیتے ہوئے یہ بات کی. اچھا اب اس میں بات یہ ہے کہ جب یہ بات ہو گئی اب انہوں نے کی, پھر انہوں نے کی, اب یہ ایک دوسرے سے بڑھنے کا معاملہ کہتا ہے یار میں اس سے بڑھ کے بات کروں گا, میں اس سے بڑھ کے بات کروں گا. تو سارا معاملہ تبھی جو ہے نا پرابلمز میں آتا ہے جب وہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ کے بات کرنے کی کوشش کرتے. تو پھر آپ ذریعہ بتائیں, آپ کسی کو 1% کرو گے, اگلا بندہ 2% کرے گا, تیسری میں 3% کرے گا, وہ بڑھتے بڑھتے بات بہت بڑھ جاتی ہے. اس کو کسی طرح اس کو کرنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا اس طریقے سے چیزیں. اصل میں تمہیں صحیح بات بتاؤں, میں ایک بات جہاں تک میں سارا چیزوں کو سمجھ رہا ہوں نا,
देखो जरीउल्ला साहब के लिए मेरा एक ब्रादराना मशवरा है, ठीक है, कि अभी तो चलो सीकर भाई की तरफ से तुम मोड करवाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ओके, क्योंकि सीकर भाई ने अपना कोई मोड मुकर्रर किया नहीं है कि भाई मेरी तरफ से ये बंदा होगा जो गुफ्तगू वगैरह करेगा, अभी आप ही कर रहे हो। मेरा एक ब्रादराना मशवरा है जरीउल्ला साहब को कि स्टूडेंट साहब को चेंज कर दें। मैं आपको ब्रादराना मशवरा, देखो वो है यंग लड़का, खून यंग है, बर्दाश्त की कमी है। जरीउल्ला साहब 50 साल के एक नौजवान है, ठीक है, तो इस वजह से जरीउल्ला साहब को चाहिए कि मतलब मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता ना, बात समझाता हूँ, ठीक है, तो वो 50 साल के ना नौजवान है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये कि उनका ये काम बनता है कि वो अपनी तरफ से एक ऐसा बंदा मुकर्रर करें जिसको बातचीत करने का इल्म हो। प्रॉब्लम बताओ यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट यहाँ पर 20 दफा तुम्हारे पास आ जाए, तुम कभी भी जरीउल्ला साहब की और सीकर साहब की बात नहीं करवा पाओगे, ठीक है। इसलिए जरी साहब को मेरा एक मशवरा है कि या तो राजा तालिबान को भेजें, या एमजी साहब को भेजें, या फतेह इस्लाम को भेजें, या मियाँ फेवरेट 49 को भेजें, ठीक है, इन सारे लोगों को भेजें ताकि बातचीत आगे बढ़ सके, नहीं तो मामला यहीं का यहीं स्टक रहेगा। क्योंकि म्यूट लगा लो यार, आ रही है? जी जी अमर भाई बहुत कम आ रही है आपकी आवाज, बहुत कम आ रही है। अच्छा यार, मैं ये पता नहीं क्या बहुत slow आप। टिकटॉक को अपडेट करना या क्या मसला बना हुआ है, कुछ है इस वजह से। आपकी आवाज का इशू आ रहा है काफी। चलो मैं चेक करता हूँ। 50 साल का बंदा मैंने बूढ़ा किया है, बूढ़ा कहा ना, तो नीचे चेक करो वैस बिहेव। वो देखिए वो चल जाना था 50 वाला जो चीमा। आमिर भाई आवाज नहीं ठीक है यार, आमिर भाई आमिर भाई, ये आपकी आवाज आवाज नहीं नहीं आ चलनी, मैं करता हूँ यार, मैं ये आवाज नहीं चाहिए हमें, ठीक है, मैं रीजॉइन। ये आवाज नहीं चाहिए हमें। अमर भाई आवाज बहुत कम है। तो अब ऐसे में ये बात है स्टूडेंट को जब तेज होती जी है तो गला शाकिर भी तू पकड़ता है ना, तू पकड़ता है गला पकड़ के दबा देता है ना, बोलो ना बोलो। आपकी भी आवाज वैसी ही आ रही है ओ शार्प शूटर भाई जैसी अमर भाई शार्प की। शूटर भाई, सबसे ज्यादा मेरा गला बंद करते हो आप, पता है आपको ये बात?